السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ڈاکٹر ناظر المسدوسی صاحب، دیگر اعضاء الشورا، معززین، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا یہ تعزیتی جلسہ میرے دوست، میں اس لیے دوست کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہیں پر یوسف صاحب نے مجھ سے کہا کہ سلیم بھائی آپ مجھ سے کتنے سال بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا میں 2 سال آپ سے چھوٹا ہوں. حالانکہ میں ابھی ریٹائر نہیں ہوا تھا، مگر کیونکہ یوسف بھائی کا دل رکھنے کے لیے میں نے کہا تھا اور انہوں نے مان بھی لیا. اور وہ بالکل سادہ دل انسان تھے. ان کی جو روش تھی وہ بالکل سادہ روی ان کے پاس تھی. ہمیشہ اسی کمرے میں یا اسی جو ادبی اجلاس کا مقام ہے یہاں پر ہمیشہ انہوں نے مجھے نہاری کھلوائی ہے. ہمیشہ ناظر صاحب کو پیسے دے کر جاتے اور ان کا وظیفہ بہت کم تھا، اتنا کم تھا کہ بیان نہیں کر سکتے ہم. اس کے باوجود وہ 200-300 روپے ناظر صاحب کو دیتے اور کہتے کہ سلیم صاحب فلاں دن تشریف لائیے، آپ کو نہاری کھانا ہے. تو کیونکہ آج تعزیت ہے، مگر میں تعزیت نہیں کہوں گا، میں ان کو اپنے طور پر تہنیت پیش کروں گا. کیوں کہ تعزیت تو سبھی لیتے ہیں اور مرنے کے بعد جو ان کی خصوصیات ہیں وہ کم بتاتے ہیں اور ان کے شاعر شان جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں بتایا جاتا. اسی لیے 4000 اشعار مکمل ہونے کے بعد 4000 مشاعروں کی تکمیل کے بعد ان کے اعزاز میں شبیر خان اسمارٹ کے گھر میں ایک تہنیتی تقریب رکھی گئی تھی. اس موقع پر میں نے یہ مضمون لکھا تھا جو روزنامے، منصف اور کئی اخباروں میں چھپا: روش اثر سے انکار مشکل ہے. روش اثر سے انکار مشکل ہے. یہ پھولوں کی پربہار محفل آج ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری ہستی کے لیے سجائی گئی ہے. ان کے بارے میں کہا گیا ہے، کیا کہوں، کون سے الفاظ استعمال کروں. ان کے اپنے الفاظ ان کی اعلیٰ سوچ کی بہترین عکاسی کرتے ہیں. مجھے ان کی طرح خوبصورت، دلکش، دلنشی اور دلچسپ الفاظ استعمال کرنا نہیں آتا. وہ نظم نگار بھی تھے اور شاعر بھی تھے. ان کا نام سید یوسف تھا. آواز کافی ہے نا؟ بیٹھیے، ہمارے 2 آفاقی صاحب تشریف رکھیے. مشاعرہ تشریف لا چکے ہیں. ان کا نام سید یوسف تھا. یوسف کے معنی نہایت حسین، خوبصورت، پرجمال. یہ یوسف ثانی یعنی جمال اور یوسف کمال بھی تھے. یوسف جب مشاعرے میں جاتے تو مشاعرہ یوسف کے حسن سے چمک اٹھتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ وہ آئے، حسن کی جھلک دکھلائے اور چلے گئے. وہ مشاعرے میں آتے تھے، پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے. پھرتی ایسی کہ وہ جائے جا. کسی نے کیا خوب کہا ہے، میرے یوسف تیری بھرپور زیارت کے لیے، میرے یوسف تیری بھرپور زیارت کے لیے مانگ لایا ہوں زلیخا سے ادھاری آنکھیں. مانگ لایا ہوں زلیخا سے ادھاری آنکھیں. وہ روش ہے، ان کا تخلص
روش ہے، اور اس اعتبار سے ان کی روش یعنی طور طریقہ، رفتار، ڈھنگ، وضع ویسی ہے جو رفتار بے رنگی ہے جو پہلے کی سردی ہے۔ سائیکل پر اپنی روش اختیار کرتے اور مشاعروں میں بھی اور فوراً اپنی روش بدل کر یہ جا ہو جا، مگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی روش نہیں بدلتے، اتنے بولے ہیں کہ جلد دوسروں کی باتوں میں آ کر قلم تھام لیتے اور لکھ بھی دیتے، مگر جب احساس ہوتا تو فوراً معافی مانگ لیتے اور ندامت کا اظہار نہ صرف زبانی بلکہ تحریری بھی کر دیتے۔ اس کی زندہ مثال میرے پاس موجود ہے کہ مجھے انہوں نے ایک مضمون دیا تھا، میں نے اخبار میں چھاپا، جس صاحب کے خلاف لکھا تھا، دوسرے دن ان کا جلسہ تھا تو ان کو تحریری طور پر انہوں نے معافی مانگی اور ان کو بولا کہ بھائی یہ دوست ہی ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ بہرحال ہر ایرے غیرے تو خیرے کو وہ شاعر ہو یا متشاعر یا پھر شعری تاریخی خطاط کا ہنر سکھانے کی کوشش کرتے، غور کر رہے ہوں گے آپ میں جو لکھا ہوں، تاریخی خطاط کا جو ہے ہنر سکھانے کی کوشش کرتے، کھلے دل سے یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں کہتے، کبھی ہچکچاتے نہیں۔ یہی معصومیت جو ان کے چہرے سے بھی جھلکتی ہے، دیکھ کر خاموش رہ جاتے۔ تختی کرنا ہوں، شاعری کی تختی دنیا بارے میں عارف صاحب، تختی کرنا ہو، تختی کرنا ہو یا تختی پر کاپی پر شعر کی تختی پر شعر لکھنا ہو، تختی کر دیتے ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بول کر بڑے ہوتے ہیں۔ میں جھوٹ بولنے پر جو آمدہ ہو گیا، میں جھوٹ بولنے پر جو آمدہ ہو گیا، سچائی مجھے ڈھکیل کے آگے بڑھ گئی۔ روش پہ ہے لکھتے فشاں گلاب کے پھول، میں گلاب کے پھول، ارغواں گلاب کے پھول، انہیں اپنوں کے بچھڑنے کا غم بھی ہے۔ روش پہ پھول کھلاتے ہیں، گلزاروں کی بات کرتے ہیں، چھوڑ گئے جو تنہا ہم کو، ہم ان پیاروں کی بات کرتے ہیں۔ روش کی مجھے یہ روش بے حد سے زیادہ پسند ہے کہ وہ کوئی بھی بات زبان سے نکلتے ہی اپنے ذہن و دل میں قید کر دیتے۔ تاریخی یا تہنیتی خطا کے لیے کہے تو کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ مجھے ایوارڈ ملنے پر اور میری کئی کتابوں پر تاریخی اور تہنیتی خطاط انہوں نے کیے۔ یہ ہر کسی کے ساتھ بھی ان کی اسی طرح سے پیش آتے۔ روش یہ کچھ ایسے ٹہر رہی ہے صبا، روش یہ کچھ ایسے ٹہر رہی ہے صبا کہ جیسے ہو کہ تیری راہ گزر سے گئی۔ روش سے میں 16 سال چھوٹا ہوں، مگر مجھے وہ ہمیشہ میرا حبوبر ہوا، تو مجھے خوشی اس بات کی ہوتی کہ اللہ مجھے بھی ان کی عمر لگائے اور اسی روش پر چلائے۔ کیا کہیں روش کو دیکھے تو 1984 سے لے کر 2019 تک وہ 18 کتابوں کے خالق ہیں۔ 1984 میں جب روش کی مختصر نظموں کا مجموعہ پیمانہ روش آیا تو وہ پیمانہ بھرا ہوا نہیں تھا۔ انہوں نے اس پیمانے کو روش پر لا کر رکھا، پہلی، دوسری اور تیسری فوار سے اس کو تر و تازہ کیا، اس میں کچھ خوشبو ڈالی، پھولوں کا رس اس میں بھرا۔ جب اس میں سے بھیلی بھیلی خوشبو آنے لگی تو بھیلی بھیلی روش بھی اس میں پیمانے کو بھرا اور اردو مسکن میں پیمانہ لبریز ہوا اور عباس مفتخی نے اس پیمانے کو چھلکایا۔ تین کتابوں کی رسمیں جرا تھی اردو مسکن میں، فاروق شکیل کی، سبی اللہ سبی کی اور یوسف علی صاحب۔ ان کی شاعری میں خوشبو ہی خوشبو ہے، وہ اپنے اندر ادراک و احساس رکھتے ہیں، قدم قدم پر جو بھی منزل ہو مہکتی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے جب لکھا تو بارش انوار ہوئی،
शेर व सुखन की बातें हुई तो रंग बिरंगी गुलदस्ते तैयार हुए, बीनी बीनी रोशनी के जरिए एक समा बांधा और इस रोशनी में वो सुखन तरा हुए। रविश असर से इनकार बहुत मुश्किल है, रविश असर से इनकार बहुत मुश्किल है। रविश ने सिले की परवाह किए बगैर चमन में गुल खिलाते रहे। इनकी खिदमत को अवार्ड और तौसीफनामों ने नवाजा गया। वो कहते हैं ना मैं ताजिर उनका ये शेर सुनिए आप, न मैं ताजिर सुखन का हूँ, मैं ना ताजिर सुखन का हूँ, न मैं शायर हूँ बाजारी, मैं सीधी सादी मेरी शायरी इबहाम से आ रही। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत दिखला देंगे जो शायर है वो करते हैं अदाकारी। वाह, दिखलावे के जो शायर हैं वो करते हैं अदाकारी। लम्हा लम्हा मोतबर इनका जवाबी गैर मियारी। इनकी हक़गोई और बेबाकी को देखने उन्होंने अपने तमाम असातिज़ा के नाम लिख दिए। कोई भी अपने असातिज़ा के नाम नहीं लेता है। एक ऐसा एक साहब का वाक़या सुनाता हूँ, वो मरहूम है कि उन्होंने बहुत बड़े उस्ताद से तस्वीर ली और एक ज़माने तक ली, आखिरी वक्त तक, मगर जब आखिरी वक्त आया तो किताब छापे तो उनका नाम ही किताब में भूल गए और अपने दूसरे नए उस्ताद का नाम लिखे, पैसे वाले थे। इन्होंने अपने तमाम उस्तादों के नाम लिखे, जिसमें मैं बताता हूँ आपको कि रऊफ अली साहब, सरदार अंजुम, इस्माइल खां परवाज दक्कनी, नसीर बियाबानी, मसरूर आबेदी और डॉक्टर फारूक शकील है। वरना आजकल के शायरों की तरह उस्ताद बदलते रहते हैं, इनका नाम लेना गवारा नहीं करते। और आजकल उस्ताद शायरों में चल रहा है, जहाँ माविजा हो, मुशायरा हो या मुनासिब नजराना मिलता है, उस्ताद शायर जो एक दूसरे के खिलाफ है बैठ जाते हैं और गैर फैसला अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल यूसुफ रवि साहब के बारे में मैंने लिखा था कि बकौल समीउल्लाह समी, वक्त हूँ हर एक लम्हे का निशान रखता हूँ, वक्त हूँ हर एक लम्हे का निशान रखता हूँ, गर्दिश दौरा की सारी दास्तां रखता हूँ। रविश साहब के लिए मेरी यही दुआ है कि वक्त दुआ में दिल से एक दुआ करूँ, मैं रब्बे कायनात से ये इल्तिजा करूँ। तू खुश रहे तो शाद रहे, तेरे दिल का आंगन आबाद रहे, तू हर पल यूं ही हंसा करे, तू फूलों के मानिंद खिला करे, तेरी जिंदगी में कोई गम न हो, तुझे किसी से कोई गिला न हो, तेरे लब पे कोई आह न हो, तुझे दिल मांगे वो अता करे। 80 साल का ये नौजवान 18 साल का लगता था और अभी भी इसी तरह फुर्तीला था। दुआ की सूरत में उसकी खातिर जो मेरे होठों से लफ्ज निकले, जो मेरी आंखों से अश्क निकले, उन्हीं के बदले में ऐ खुदाया तू जब भी उनका नसीब लिखना, उरूज लिखना, कमा लिखना, कभी ना लफ्ज़ ज़बान लिखना। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। और उनकी सबसे अच्छी आदत ये थी कि वो कभी किसी के साथ नाराज नहीं होते थे। अगर किसी के साथ कुछ हो गए तो फौरन आके आप माफी मांग लेते। ये उनकी बहुत अच्छी आदत, क्योंकि मैं यूसुफ अली साहब के साथ ज्यादातर इसी जगह पे रहा हूँ, हमेशा उनके साथ यहाँ पे हाल में रही है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब भी वो मुझे कलाम भिजाते मजमे जौहर के लिए, फोन करके पूछते कि सलीम साहब आप कलाम पढ़े या नहीं पढ़े, अगर पढ़े हैं तो बोलिए, मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूँ। और वो अपनी डायरी में लिख लेते थे। इसी तरह हमारे पास एक शायर थे रऊफ रहीम। रऊफ रहीम की भी यही हालत थी कि वो अगर अखबार में उनका एक लाइन आ जाती उनके नाम की, तो वो लाइन काट के अखबार में लगा देते। उसके बाद मैं दूसरा देखा, यूसुफ रवि साहब जो है 4000 मुशायरे जो पढ़े हैं उसकी पूरी तफसील लेकर आए थे। वो हमारे इस्मार्ट साहब के घर में बैठे थे, दावत थी वहाँ पे, सबको उन्होंने बताया। और हर चीज, कई किताबें, कई डायरियाँ, उसमें ये जो है हर एक के बस की बात है, क्योंकि हम भी छपते हैं, आप भी छपते हैं, आप भी लिखते हैं, आप भी लिखते हैं, रिकॉर्ड रखना बहुत बड़ा काम है। बहरहाल मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे बहुत ही अफसोस है कि वो वक्त से पहले चले गए,
जाना तो जो है हमको था, क्योंकि हम जो है उस कबील के नहीं है, ना अच्छे शायर हैं ना अच्छे अदीब हैं। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मीरफाज सलीम साहब, नायब सदर शाहजहाँ कॉलेज शोबे उर्दू और वाइस प्रिंसिपल और सदर शोबे नामवर सहाफ़ी और अदीब। अब मैं जनाब ज़हूर ज़हीराबादी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना यूसुफ रईस साहब पर लिखा हुआ ताज़ियती कलाम पेश करें। जनाब ज़हूर ज़हीराबादी साहब। उनके बाद तकरीर के बाद, अच्छा हाँ ठीक है हर एक तकरीर के बाद जी इजाज़त है इरशाद मोहतरम सैयद यूसुफ रईस साहब के बारे में जितना भी लिखा जाए कम है। अभी मेरे जहन में आए 4 मिसरे शायद टूटे फूटे जो भी मैंने एक खराज पेश करने के लिए अभी लिखा हूँ वो पेश करता हूँ। बड़े प्यारे यूसुफ रवीश थे हमारे, बड़े प्यारे यूसुफ रवीश थे हमारे, बहुत सीधे यूसुफ रवीश थे हमारे, बहुत सीधे यूसुफ रवीश थे हमारे, बड़े प्यारे यूसुफ रवीश थे हमारे, बहुत सीधे यूसुफ रवीश थे हमारे, मोहब्बत खुलूस और वफा का थे पैकर, मोहब्बत खुलूस और वफा का थे पैकर, फरिश्ते से यूसुफ रवीश थे हमारे, मोहब्बत खुलूस और वफा का थे पैकर, फरिश्ते यूसुफ रवीश थे हमारे, फरिश्ते से यूसुफ रवीश थे हमारे, फरिश्ते से यूसुफ रवीश थे हमारे। अभी जनाब ज़हूर ज़हीराबादी साहब यूसुफ रईस साहब पर खिदमती लिखा कायदती ख़ता पेश कर रहे थे। अब मैं डॉक्टर नाजिम अली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर अंदाज में इज़हार ख्याल फरमाएं। मज़ामीन पढ़ेंगे लंबा, मज़ामीन को वक्त ज़्यादा हुआ। जनाब नाज़िम वज़ीर साहब और मोहतरम सामिर इकराम, आज यूसुफ रईस साहब की रहमत पर इस ताज़ियती जलसा मुनक़िद किया जा रहा है और यूसुफ रईस साहब की शख्सियत में हमदर्दी, खुलूस, सादगी और बहुत ये ईमानदार शख्सियत थी, क्योंकि जब उनसे मुलाकात होती थी तो बहुत सादगी का मुजाहरा करते थे, छोटे हो बड़े हो सबसे शफाकत से पेश आते थे। नादी भाई की अदबी दीवान खाने में कई मतलब उनसे मुलाकात हुई, मुशायरे और अदबी दासों की मेरी उनकी मुलाकात यहाँ एक स्कूल है पंजेशा में, वहाँ पर वो मुशायरा पढ़े थे, गज़ल भी सुनाए थे, वहाँ भी वो मुलाकात रही। बहरहाल अल्लाह को से मंजूर है तो हुआ, हर लफ्ज़ को वहाँ का मज़ा चलना है। यूसुफ रईस साहब बहने के शायर, उनके कारनामे वो वक़ी और वसी और अरफा है।
क्योंकि उन्होंने खताब भी लिखे हैं, गज़लें भी लिखी हैं, नज़में भी लिखी हैं, और फिर वो 4000 मुशायरे जो पढ़े हैं वो भी एक मेमोरेबल अमल है तारीख साज। तो हर शायर बड़ा से बड़ा भी शायर हो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखा, बेशक। लेकिन यूसुफ रवी साहब ने नादिर साहब ने कहा कि उसकी तमाम तफसीलात भी मौजूद हैं। तो बहरहाल एक शायर में इतना डिसिप्लिन ज़िंदगी के ताल्लुक से, ज़िंदगी के ताल्लुक से जो निज़ाम-उल-औक़ात है उसको भी उन्होंने जो किया है उस पर चलते रहे। और दूसरी अहम बात है कि मैं भी हमेशा ज़रा परेशान हुआ करता था कि याकूबपुरा हो, पोर्टियाली जाओ, वो साइकिल में जाते थे। तो मतलब मुलाकात हुई, के बात करें सवाल मालिक साहब, मैंने भाई आप उम्र में आप साइकिल नहीं, इससे ज़रा बदन भी हल्का होता, थोड़ा वर्जिश भी होती मेरी। तो इस तरह से वो मन को देखा करता है, इतना सादा आदमी, और वो एमटेक इंजीनियर है, IIT के उन्होंने काम भी किया है। तो बड़ी जिंदगी के हर मोड़ पे, जिंदगी के हर चाहे मामलात में बड़ी सादगी उन्होंने दिखाई। और तो सादा इंसान थे। मैंने कुछ मजमून लिखा था, लेकिन अब टाइम नहीं है। लेकिन बहुत से हजरात ने, क्योंकि उन पर कुछ ऐसे ऐसे अशार लिखे हैं जो तहनीती अशार हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं, अगर आप इजाज़त क्योंकि। और वैसे मुल्खा सलीम साहब ने उनकी तसानीफ का भी जिक्र किया है। थोड़ा माइक खरीद कीजिए। और फिर पैमाने रवीश और लंतरानी, दूसरी फवार, महज की बातें, दीनी तकारीर का खुलासा, और तीसरी फवार, खतार, खुशबू ही खुशबू, ताबेश, नातिया, मजमुआ, इदराक में एहसास, गुलदस्ते रंग रंग, तहनीकी ताबियत खतार, शेर सुखन की बातें, कदम कदम मंजिल, नाजिर मदूदी के शुगर फन पर गिरे मज़ामिन का इंतखाब, और बारिश अनवार, हमद नात, मनखबत, सलाम खतार का मजमुआ, मुशायरे ही मुशायरे। और फिर उर्दू शायरी में मुरवी, मुफरद और मुरक्कब बहरे, गुलदस्ते सुकून, और बाब सुकून, चंद औराख, भीनी भीनी रोशनी। और फिर इस तरह से तहनीती कलाम, और इसमें जो चाहे तसानीफ उनकी मौजूद है। उसने कहा कि 18 तसानीफ है। तो जब इतना बड़ा काम उर्दू ज़बान अदब में उन्होंने तकलीफ़ी अंजाम दिया है, तो भाई ज़रूर हिंदुस्तान की जामियात, खासतौर पर तेलंगाना की जामियात पर इन पर PhD का काम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिसर्च शायर बहुत मेहनत करता है, बहुत कुछ लिखता है, शेरी सरमाया वो छोड़ जाता है, और अपने शेरी सरमाए के ज़रिए से एक रहनुमा का, एक राहबरी का, समाज, मिलत, माशरे के लिए काम करता है। तो लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, तेलंगाना यूनिवर्सिटी हो, वहाँ यूसुफ रवीश फ़न और शख्सियत पर काम होना चाहिए। और हजरात, क्योंकि बहुत से हजरात ने उनकी शख्सियत पर और उनके कारनामों पर तहरीक तौर पर अशार उन्होंने पेश किए हैं, उस पर थोड़ा सा मैं रोशनी डालते हुए आगे बढ़ूंगा। हलीम बाबर ने कहा, हलीम अपना रफीक आले पैगंबर रवीश भी है, इंसानियत के खुलूस का पैकर रवीश भी है। और यूसुफ रवीश अपने बारे में कहते हैं, लाखों सुखनवरों में सुखनवर रवीश भी है, बहरे सुखन का एक शनावर रवीश भी है। इसी तरह अली बाबा दर्पण, इतना खुलूस, इतनी लगन उर्दू अदब से। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर, रवीश भी है। हुसैन जुमरा साहब ने भी शेर और सुखन का एक समंदर रवीश भी है। गुलशन में शायरी के गुलेतर
रविश भी है, और डॉक्टर नादिर मदूसी ने भी तरह की तहसीन उन्होंने पेश किया है। उनके कलाम, उनकी शख्सियत पर आज़ाद शायरों में कलंदर रविश भी है, आज़ाद जिंदगानी का पैकर रविश भी है। इस तरह से कारी अनीस अहमद अनीस ने भी कहा कि सोज व गुदाज कुतुब का मजहर रविश भी है, अफकार दिल नवाज का पैकर रविश भी है। फिर मोहम्मद जाहिद हरियाणवी वली मोहम्मद इल्मे अरूज में भी तू है कामयाब, अहबाब की निगाहों में बरतर रविश भी है। इस तरह से ताज मुस्तर ने भी कहा, ये बात और है कि मिलनसार है मगर दुश्मन के हक में फिर भी मुजफ्फर हुई। इस तरह से इतनी पूरी सिफात इन लोगों ने अपने इस तहनीकी अशार में उन्होंने पेश किए हैं, जिसमें उनकी शख्सियत भी जलवागर है और उनके कलाम की खुशियात भी हमें इसमें मिल जाती हैं। और बहुत से लोगों ने भी जो क्या है ये इस तरह के तहनीकी अशार किसी लोगों पर उन्होंने लिखे हैं। तो इस तरह से यूसुफ रवी साहब की सीरत, शख्सियत, हयात के मुख्तलिफ मुतनों पहलुओं को उन्होंने अपने अशार में पेश किया है। उनकी सलाहियत, सिफात, काबिलियत और कलाम की खुशियात का जिक्र किया है। और इस तरह से अब आप देखें यूसुफ रवी साहब का कलाम, मैंने महसूस किया, जो महसूस किया है वही कहता हूँ मैं कि तीरगी बाअसर ना हो जाए, रोशनी दर बदर ना हो जाए। और फिर उसके बाद खुशी के जाम जमाने में बांटता हूँ मैं, तो चलता फिरता मोहब्बत का मैदा हूँ। खुद को बड़ा समझने का सारा फसाद है, अपने खिलाफ जंग ही असली जिहाद। बड़ी बात कीजिए आप साहब, फिर बढ़िया खुद को बड़ा समझने का सारा फसाद है। इससे बड़ा होता है इंसान के साथ, खुद को कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल नाकस, बिल्कुल नाचिस समझना चाहिए। बेशक अपने खिलाफ जंग ही असली जिहाद। असल जिहाद तो वही है साहब, खुद अपनी तरबियत, अपनी तहजीब, अपनी तकलीफ होना चाहिए, अपनी तकलीफ होना चाहिए। और झूठ और धोखा क़यामत में नहीं, मुंसिफी यहाँ की अदालत में नहीं। ये कलम कब है, एक दिया है शायर का, कागजों के चेहरों पर रोशनी गुजरता। तो इन अशार से हालात हाज़िरा और नफ्सियाती और दाखिली मसाइल पर उन्होंने तर्जुमानी भी की है और उल्फत और मोहब्बत को आम करने की अपने अशार से उन्होंने कोशिश की है। मुख्तसर लहरों में पुरअसर अंदाज से अपनी बात को पेश करते हैं यूसुफ रवी साहब। और फिर अल्फाज भी बहुत सादा और बहुत मौसर होते हैं। और इस तरह से क्योंकि बहुत सी उनकी खिदमत है, अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह इनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, इनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर दें और इनकी खबर को नूर से भर दें। और उसे इन सहमा के साथ कलमा के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये थे डॉक्टर नाजिम अली साहब, सादर प्रिंसिपल मोड़तार डिग्री कॉलेज निजामाबाद। अब मैं जनाब कारी अनीस अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ताज़ियती कलाम पेश करें। कारी अनीस अहमद साहब। कलाम का कलाम नहीं वैसा नहीं, एक तकरीर एक कलाम ऐसा करके ख़त्म करें तो आप लोग देर हो जाती। अब वो करूँगा मैं कि उसका रखूँगा नातिया आपके आपसे सोच के करो, क्योंकि शैतान से वापस नहीं वो बराबर जलसा कर दो तो जलसा करने के बाद में फिर फिर उसके बाद मतलब समाज फरमाया जाना है, शायद इनको जाने दो।
आइए सर, खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जी इरशाद। यूसुफ रविश की याद है दिल में बसी हुई, यूसुफ रविश की याद है दिल में बसी हुई, तनवीर थी सरापा मोहब्बत की प्यार की, यूसुफ रविश की याद है दिल में बसी हुई। हाय ये मुखलसीन में कैसी कमी हुई, फैली हुई थी जिनसे मोहब्बत की रोशनी, फैली हुई थी जिनसे मोहब्बत की रोशनी, पैकर बने हुए थे वो इखलास व प्यार का, हर तहनीयत में उनकी थी उल्फत अजीब सी, हर तहनीयत में उनकी थी उल्फत रची बसी, हुस्ने अमल का खुल्द से मौला दिया सिला, हुस्ने अमल का खुल्द से मौला दिया सिला, आगोश खुल्द इनसे हुई फिर हरी भरी, आगोश खुल्द उनसे हुई फिर हरी भरी, जो मरहला था कब्र का आसान हो गया, नातों से उनकी फैली लहद में जो रोशनी, नातों से उनकी फैली लहद में जो रोशनी, यूसुफ रविश का हौसला सबको मिले खुदा, यूसुफ रविश का हौसला सबको मिले खुदा, है तेरी बारगाह में अपनी दुआ यही, है तेरी बारगाह में अपनी दुआ यही। आखिरी शेर सुनाता हूं, नादिर के इस मकान में आमद थी बारहा, नादिर के इस मकान में आमद थी बारहा, अब क्या है उनकी याद ही बाकी यहाँ रही, अब क्या है उनकी याद ही बाकी यहाँ रही, नादिर के इस मकान में आमद थी बारहा, अब क्या है उनकी याद बाकी यहाँ रही, है ये दुआ अनीस की ताअत में हो बसर, है ये दुआ अनीस की ताअत में हो
जितनी भी जिंदगी है हमारी रही है ये दुआ इसकी तात में हो बसर जितनी भी जिंदगी है हमारी रही सही ये थे कारी अनीस अहमद साहब जो हज़रत यूसुफ रईस साहब का ताज़ियती कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं जनाब हलीम बाबर साहब से जो बज़्म मुअज़्ज़ब के मोतमद भी हैं, महबूब नगर से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इज़हार ख्याल फरमाएँ। जनाब ताज़ियती कलाम या जो भी इज़हार ख्याल मैं तबलीग में शुरू कर रहा हूँ कि और मैं माइक सामने नहीं शरीयत आशना तुम थे, शरीयत आशना तुम थे, तरीक़त की रिदा तुम थे। अरे बहुत बहुत अच्छा। शरीयत आशना तुम थे, तरीक़त की रिदा तुम थे, मोहब्बत की फजा तुम थे, शराफत की अता तुम थे। शरीयत आशना तुम थे, शरीयत आशना तुम थे, तरीक़त की रिदा तुम थे, मोहब्बत की फजा तुम थे, शराफत की अता तुम थे। देखिए तुम्हारे साथ गुजरे दिन बहुत हमको सताते हैं, तुम्हारे साथ गुजरे दिन बहुत हमको सताते हैं। उलूफ़ो दर्द उल्फत का हसीन सिलसिला तुम थे, उलूफ़ो दर्द उल्फत का हसीन सिलसिला तुम थे। हसी चेहरा अदा खुस्तर बहुत ही दिल नशी खामत, हसी चेहरा अदा खुस्तर बहुत ही दिल नशी खामत, मुकम्मिल शख्सियत दिलकश बड़े ही दिलरुबा तुम थे। शख्सियत दिलकश बड़े ही दिलरुबा तुम थे। हम निकल पड़ते थे बारिश में, नहीं थी धूप की परवाह। निकल पड़ते थे बारिश में, नहीं थी धूप की परवाह। बड़े ही आज़म के मालिक हमारे रहनुमा तुम थे, बड़े ही आज़म के मालिक हमारे रहनुमा तुम थे। देखिए नबी के सच्चे हीरो पैरों थे, नबी के सच्चे पैरों थे, गुलामे किबरिया तुम थे। नबी के सच्चे पैरों तुम थे, गुलामे किबरिया तुम थे। हमेशा हमने देखा है तलबगारे दुआ तुम थे, हमेशा हमने देखा है तलबगारे दुआ तुम थे। और नबी का चाहने वाला वली से कम नहीं होता, नबी का चाहने वाला वली से कम नहीं होता। नबी के सच्चे आशिक थे, खुदाई बाखुदा तुम थे। नबी का चाहने वाला वली से कम नहीं होता। नबी के सच्चे आशिक थे, खुदाई बाखुदा तुम थे। आखिरी शेर है, महजिब एक नशा थे, महजिब एक नशानी थे, खुदाए दिल बड़ी में तुम। महजिब एक निशानी थे, खुदाए शायरी में तुम। अदब की जिंदगी में नुमाया राबिता तुम थे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छे। महजिब एक नशा थे, खुदाए शायरी में तुम। अदब की जिंदगी में नुमाया राबिता तुम थे। तड़प जाता है ये बाबर, तड़प जाता है ये बाबर तुम्हें मरहूम लिखने पर। तड़प जाता है ये बाबर तुम्हें मरहूम लिखने पर। तुम्हारी खूबियाँ जिंदा बड़ी बातों तुम थे। तड़प जाता है ये बाबर तुम्हें मरहूम लिखने पर। तुम्हारी खूबियाँ जिंदा बड़ी बातों तुम थे। शरीयत आशना तुम थे, तरीक़त की रिदा तुम थे, मोहब्बत की फजा तुम थे, शराफत की अता तुम थे। ये थे जनाब हलीम बाबर साहब
मोहतरम बजदो इल्म अदब जो मंजूम ख्याज अकीदत पेश कर रहे थे, अब मैं जनाब डॉक्टर राही साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इजहार ख्याल फरमाएं। जनाब डॉक्टर राही साहब, मोहतरम बज़्म जौहर। सदर आली क़द्र, मुअज़्ज़ज़ीन, अहबाब, शोरा, अदीब, नाक़दी, सामईन। यूसुफ रवीश पाए करे हक़्क़ुल यकीन। यूसुफ रवीश पाए करे हक़्क़ुल यकीन, असरारुल बिल ग़राइब शख्सियत। जनाब यूसुफ रवीश एक फरिश्ता खसलत, हक़नुमा, नेक तैनत इंसान थे, जिनके सिद्क़ व सफ़ा और इंसान दोस्ती की कसम खाई जा सकती है। वो खानकाही तरीक़ के नेक खूब हमा सिफत सादालुल इंसान, इन्हें आप हमा रंग, अजूबा रोज़गार, नादरुल अजायब, असरारुल बिल ग़राइब शख्सियत कह सकते हैं। बदाहर पाक व साफ, सीधी सादी शख्सियत, सीधी सादी शख्सियत, मिजाजन बागो बहार, तरहदार, नहायत वज़हदार, दिल फगार, साइकिल सवार, पुरस्रार, रंगदार, खुशगवार, इफ्तिखार, इज़्ज़ो-व-ख़ार, पहलूदार, ज़रनिगार, दिलफिगार, काबिल अफ़कार, पहलूदार, रोशन इज़हार, तख्लीक़ कार, नादरुल अफ़कार, फनकार, अजीबुल असरार, सवाए निगार, उस्ताद फ़िक्र, शायर व नसार, मकतूब निगार, फिक्र दिल फिगार, मिजाजन सवाए निगार, इंशाया बरदार, अफसानवी अफकार, तस्करा निगार, लायक तख्लीक़ कार, लायक दीप, पहली फुआर, पैमाइश फिक्र, दूसरी फुआर, रंतरानी महकती बातें, तीसरी फुआर, लायक मुतालिया, खुशबू ही खुशबू, काबा इश्क, नातिया अफकार, एहसास व इदराक, लायक अफकार। यूसुफ रवीश के बड़े भाई रऊफ खलीश असल में मेरे दोस्तों में शामिल थे। मलकपेट जदीद में शोएब उल्ला खान शहीद के नाम से मौसूम शहीद मेमोरियल, शोएब मेमोरियल लाइब्रेरी हमारे मुताल्ले का कदीम मरकज था। वहाँ अक्सर किताबों के मुताला और वहाँ से किताबें घर ले जाने की गर्ज से आना जाना लगा रहता था। और चंचलगुड़ा कदीम हाई स्कूल के हमारे कदीम हाई स्कूल के क्लासमेट सैयद मोहम्मद सैयद फजलुल हक बिरादरान डॉक्टर ज़ेबुनिसा एमडी, जिसे हम लोग ज़ेबुनापा के नाम से पुकारते और घर आते जाते थे। सैयद अली अकबर इंजीनियर, उनके शौहर नामदार जो अकबर टावर के खालिक थे, हमारे मोहतरम भाईजान, इनसे हम बहुत डरते थे। और दूसरी अहम वजह, वहाँ एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग बार करने के लिए भी आया करते थे और रऊफ खलीश से मुलाकात भी हो जाया करती थी। यूसुफ रवीश से तो खैर 30-35 साल इधर मौज़ जौहर के दीगर मुशायरों के ज़िम्मन में मुलाकातें हुई। मैं बहुत कम मुशायरों में शिरकत करता था, शहर में 4-4 क्लिनिक देखता था। हमतन मसरूफियत की बिना पर सिवाय मौज़ जौहर के महाना तरी मुशायरों के और बाज़ खास मुशायरों की शिरकत के दीगर मुशायरों में शिरकत गैर यकीनी हुआ करती थी। लेकिन यूसुफ रवीश बराबर हमारे महाना मुशायरों में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया करते थे। बहुत मुखलिस, शरीफुल नफ्स और नेक खूब, वक्त के पाबंद ही नहीं, सौम सलवात के भी पाबंद, बेज़रर और अदबी गुराहबंदी के खिलाफ आजाद मुनिश
गैर जानिबदार अपने मिजाज के मुनफरिद इंसान थे। सादगी इनके मिजाज का खासा थी। दो टोक गुफ्तगू के आदि मिजाजदार जी हुजूरी इनको छूकर भी नहीं गुजरी थी। वो जी हुजूरी इनको छूकर भी नहीं गुजरी थी। वो मर्द खलंदराना वो सूफियाना थे। इखलास और मुरव्वत मेहर और मोहब्बत की तस्वीर उनसे एक बार मिलने वाला बार बार मिलना पसंद करता था। साहिब किरदार ही नहीं साहिब गुफ्तार भी थे। आशिक रब्बानी, पीर लासानी, सूफिया सुल्तानी, शायर फुरखानी भी थे। शायर भी हर महफिल में शरीक महफिल ही नहीं बल्कि मुशायरे के मेहमान खुसूसी के लिए तबलीग के सुखन तहसीन सुखन भी पेश करना नहीं भूलते थे। इस तरह उन्हें सुखन सरा देखकर मुझे अपने उस्ताद अव्वल हजरत मोहम्मद अब्दुल गफ्फार रफीक हैदराबादी जानशीन हुर्मुस की याद ताज़ा हो जाती थी। क्योंकि हजरत रफीक हैदराबादी भी महफिल मुशायरा में अपना कलाम सुनाने से कबल महफिल के मेहमानान खुसूसी हजरात के लिए फिल बदी तहनीती खतात जरूर सुनाया करते थे और उनको तारीखी खतात फिल बदी सुनाकर दाद लेने का जुनून की हद तक शगफ था। वो भी हिजरी वो ईसवी में खतः तारीख एक ही खतः तारीख जिसमें ईसवी तारीख और आपके हिजरी तारीख भी जो है का एहतमाम होता था। ये हजरत की मुनफरिद खुसूसियत थी। यूसुफ रवीश मरहूम जिनको मरहूम लिखते हुए कलेजा मुंह को आता है, जिनकी कमी शिद्दत के साथ महसूस होगी। मैं अब इसको इख्तिसार के साथ करते हुए एक शेर पर अपना ये इख्तिताम करता हूँ कि बखौले शायर हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में वीराओं का। रियाज फतेहपुरी को याद दिला।